Hello students, welcome, and today we are going to start our next topic, that is bases and the neutral substances. So far we have covered the topic that was acids. We have done its classification, characteristics and uses of acids. So in the same way we will talk about the bases now. So the bases are the bitter in taste, as we have done. The acids होते हैं, they are sour in taste, and the bases are mostly bitter in taste. These are the chemicals which are also found in our um, kitchens also, like baking soda is there, that is base. Washing soda that is used to wash the clothes, baking soda for making cakes and bakery substances, and soap also contain bases जो हम soap use करते हैं even for as a detergents also, as well as for other purposes. बेसिस बेसिकली क्या होते हैं, दे आर सोपी टू टच. जब हम उसको टच करते हैं, दे हैव अ सोपी एंड स्लिपरी फील. जैसे हम सोप से हैंड वॉश करते हैं तो अवर हैंड्स बिकम स्लिपरी. सो मोस्टली जो बेसिस होते हैं, दे ऑल गिव अस अ स्लिपरी फील. दे आर स्लिपरी इन नेचर. क्लियर? So now let us proceed to the classification of the bases. Classification we will do on the three things जो हमने previous acids को की थी. One was on the basis of source, strength and aqueous solution. Source के basis पे there are of two types. One is organic and inorganic. Organic which we get from nature, whereas inorganic bases are those which we produce in laboratories. So like acids, bases can have the organic as well as the inorganic sources. For example, nicotine जो तंबाकू में यूज़ किया जाता है, कैफीन इन कॉफ़ी आर ऑर्गेनिक बेसिस, ये नेचुरली मिलते हैं. वेयर एज कॉस्टिक पोटाश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम एंटासिड भी यूज़ करते हैं, इनो में प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी. तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड. तो these are prepared in the laboratories, that is they are inorganic bases. So this is on the basis of source. Next is on the basis of strength. On the basis of strength, same as like acids, जो bases होते हैं, they are also strong, and weak bases जो जिनका effect ज़्यादा strong होता है, which are having greater action, corrosive ज़्यादा होते हैं, they are the strong bases, whereas जिनका इफेक्ट ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता on the other substances, they are the weak bases. So their examples are like strong acids में sodium hydroxide which is used in detergents and soaps में यूज़ किया जाता है. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि फील्ड में यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पसेस में, इवन फॉर मेकिंग एंटासिड्स टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द फील्ड. तो इसको फार्मर्स भी यूज़ करते हैं. क्लियर? एंड देयर आर सम वीक बेसिस सच एज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग द टाइल्स, क्लीनिंग द फ्लोर्स. ऑल्सो इसको हम सैनिटाइजर में भी यूज़ करते हैं. सो दे आर नॉट हैविंग मच मोर इफेक्ट ऑन our body. Copper hydroxide, aluminium hydroxide. So these are the few examples of weak bases. Clear? Next is concentrated and dilute bases. Concentrated which contain less amount of water, whereas जो dilute bases होते हैं, they do not contain much amount. They contain much more amount of water as compared to the concentrated bases. Clear? Just as acids, एसिड की तरह बहुत सारे बेसिस भी बहुत करोसिव होते हैं. सो वी शुड नॉट टेस्ट एनी बिकॉज दे आर हैविंग मच हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. सो वी शुड नॉट टच we should not taste these bases with our tongue. Okay. Next is देर आर सम बेसिस विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर. जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व कर जाते हैं, उनका एक स्पेशल नेम दिया जाता है विच इज़ नोन एज एल्कलीज. सम एग्जांपल्स आर लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्सेस विद वाटर, जो कि सोप में प्रेजेंट होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज विच आर द बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर. इनको स्पेशल नेम दिया है, दैट इज़ द एल्कलीज. क्लियर?
So now let us come to the characteristics of bases. Characteristics, the properties, one is they are bitter in taste, and they have a soapy touch when we touch them. Some are soluble in water also जो soluble alkalis होते हैं they are soluble in water. Also they conduct electricity. Clear? They change the red litmus paper into blue. जो red litmus paper होता है, जैसे ये वाला रेड लिटमस पेपर है, इसके ऊपर अगर हम ड्रॉप डालें बेस का तो इट विल टर्न ब्लू. सो दिस इज दैट द जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालें तो क्या होगा? यू माइट बी वंडरिंग कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एक बेस का ड्रॉप डालते हैं तो क्या होगा? इसका कलर विल रिमेन ब्लू, वो ब्लू ही रहेगा. बट अगर हम रेड पे डालेंगे, अगर हम रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसका जो कलर है इट चेंजेस ब्लू, ऐसे हो जाता है. क्लियर? ऑन द पुटिंग सम बेस ओवर इट. क्लियर? नेक्स्ट इज uses of bases. There are few we will do the uses of bases जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोप्स में या फिर इन मेकिंग पेपर ऑल्सो, कपड़ा बनाना है तब भी यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेदर इंडस्ट्रीज में इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट हैव अ corrosive effect on our health, on the body. It goes and it is also used in manufacturing of soaps and detergents. Clear? So this is a sodium hydroxide which is strong base. Next is calcium hydroxide. This we have done also. That is, it is a strong base. It is in the solid form. इसके दो नेम होते हैं. जब तो ये solid form में होता है तो it is known as slaked lime, whereas जब ये liquid form में होता है saturated solution में तो उसको lime water बोलते हैं. Clear? And it is used to purify the water in agriculture also to reduce the acidity of water. Water की acidity remove करने के लिए जो farmers हैं इसको fields में use करते हैं. Clear? Next is magnesium hydroxide. That is also a base but it is a weak base and inorganic, जो हम laboratories में बनाते हैं. It is used in ENO में use किया जाता है. उसमें क्या होता है? It act as antacid. Antacid means which remove the effect of acid. अगर हमारे अंदर एसिडिटी हो गई तो उसको, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें बेस चाहिए, है ना. तो बेस हमें कौन सा चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस. अगर हम हमारे अंदर अगर एसिडिटी बढ़ी है तो अगर हम उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो वो इट विल न्यूट्रलाइज इफेक्ट. तो इसीलिए हम एक वीक बेस लेंगे ताकि हमारे अंदर जो एसिड है जो खाने को डिज़ोल्व होता है वो प्रॉपरली ख़त्म ना हो जाए. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ वीक बेस एंड इट डू नॉट अफेक्ट आवर हेल्थ ऑल्सो. एंड जिससे क्या होता है, जो एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस हुआ है हमारे स्टोमक के अंदर उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. एंड वन मोर इज़ देयर दैट इट इज़ यूज एज फ्लेम रिटार्डेंट. फ्लेम को ज़्यादा स्प्रेड होने की को से अवॉइड करता है. ये फ्लेम को स्प्रेड नहीं होता इन द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. Clear? And also ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is also a weak base and it is having a characteristic pungent smell. Unpleasant smell होती है इसकी and it is used in sanitizers and window cleaners में भी use किया जाता है and also for making fertilizers and dyes. Clear? So these are few uses of bases. नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जो ना ही बेस होते हैं ना ही एसिड होते हैं, तो दे आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस. दे हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. लिटमस पेपर जैसे अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा अगर उसका ड्रॉप डालेंगे, एंड अगर रेड है तो अगर वो रेड है तो रेड ही रहेगा. क्लियर? तो देर इज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. एंड जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, these all are the neutral substances when they are in the pure form. Even जो water है that is also neutral जब pure form में लेते हैं हम. Clear?
So the water that we use in the daily life is not neutral substance as it comes from the rain water. Mostly जो water हमारे घरों में आता है तो it is kind of उसमें कुछ थोड़ा बहुत रेन वाटर भी मिक्स हुआ होता है विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, तो वो प्योर नहीं होता. जो वाटर प्योर नहीं होता इट इज़ नॉन न्यूट्रल. ओके, नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट टू क्लासीफाई द गिवन सब्सटेंसेस एज अ बेसिक न्यूट्रल और एसिडिक. तो इसके लिए आई हैव टेकन 3 सब्सटेंसेस, 3 सब्सटेंसेस लिए हैं मैंने. वन इज़ विनेगर ले लिया है एक बीकर में, आई हैव टेकन. अदर में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड थर्ड में HCl ले लिया है. क्लियर. एंड ऑल्सो आई हैव टेकन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इन ईच ऑफ द वॉच लॉस में मैंने एक रेड लिटमस पेपर रखा, एक ब्लू लिटमस पेपर, तीनों में रख दिए अलग अलग. रेड एंड ब्लू तीनों में जो है उनमें एक रेड है एक ब्लू है, एक रेड है एक ब्लू है, एक रेड है और एक ब्लू लिटमस पेपर रखा हुआ है. तो फर्स्ट में विनेगर का मैंने ड्रॉप लिया, उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला एंड उसने क्या कर दिया, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस. तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस. एंड उसके बाद जो उसका एक ड्रॉप था मैंने रेड पे डाला, रेड लिटमस पेपर वैसे का वैसा ही रहा. क्लियर. तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो विनेगर है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है. अगर वो रेड में कर रहा है तो इट हैव सम एसिड. यस, तो विनेगर जो है हमारा इट इज़ एन एसिडिक इन नेचर. कौन सा एसिड होता है, इट इज़ एसिटिक एसिड जो इसमें प्रेजेंट होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया अभी मैंने. सोडियम बाइकार्बोनेट का ड्रॉप मैंने ब्लू लिटमस पेपर पे डाल दिया, ब्लू से वो ब्लू ही रहा. एंड जब उसको मैंने रेड लिटमस पेपर पे डाल दिया उसने उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया. तो वी हैव कंक्लूडेड दैट जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है, एक जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. तो जो सब्सटेंसेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं दोज आर बेसिस. तो जो मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है. क्लियर. नेक्स्ट इज एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने अभी HCl, और इसका मैंने ड्रॉप पहले ब्लू लिटमस पेपर पे डाला. इसने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट उसका जो ड्रॉप था मैंने रेड लिटमस पेपर पे डाला. यू कैन सी हेयर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसने क्या किया, जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर था उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया एंड जो रेड लिटमस पेपर है उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया. तो इट मीन्स जो मेरा सोल्यूशन था वो क्या है, एक एसिडिक है इन नेचर. क्लियर. सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डन. So in the next video we will start with the indicators. Thanks for watching.